Hello Sam class, this is your math subject children. Today we are going to start our new chapter 6. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 6, algebraic expressions. So firstly, constant. So what is constant? A quantity which has fixed numerical value is called a constant. Now variable, a quantity which takes various numerical values is called a variables. It is represented by letters A, B, C, X, Y, Z, etc. Now algebraic expressions क्या होते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन होता है constant and variables का and वे connect होते हैं operations of addition, subtraction, multiply और divisions. For example, x plus 5, 3 plus 2 AB. सो ये एग्जाम्पल किसके हैं? algebraic expressions के, बिकॉज इनमें constant भी है 5, वेरिएबल भी है एंड प्लस का साइन भी है, ऑपरेशन ऑफ addition. Okay, now term of an algebraic expressions. So the term of an algebraic expressions are the part of the expressions that are connected by the operation of addition or subtraction. For example, 4x square minus 5xy has two terms. One is 4x square and other is minus xy. Okay, now factor of terms, the constant are and the variable whose product make a term of an algebraic expressions are called the factor of the term. A constant factor is known as numerical factor while a variable factor is known a literal factor. Now see the example, x square plus 2xy minus 3y square consist of three terms. इसमें three terms हैं, one is x square, second is 2xy and third is minus 3y square. So the x square is the product of x and x. Okay, x square को हम क्या लिख सकते हैं? x multiply x, where x is the variable factor of literal factor. Now term 2xy is the product of 2 multiply x and y. Okay, ये हमारी product है 2x and y की, where 2 is a numerical factor and x, y are the literal factor. The term minus 3y square, so the product of minus 3y and y, where minus 3 is the numerical factor and y is the literal factor. So इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे बेटा? सी दिस x square plus 2xy minus 3y square. So यहाँ पर फर्स्टली हम इन्हें टर्म्स में लिखेंगे, x square 2xy minus 3y square. So यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखेंगे, x square को हम कैसे लिखेंगे? x एंड x प्रोडक्ट हम लिखेंगे इनकी. नाउ 2xy को 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y हम लिखते हैं. सो 2xy हमारा हो जाएगा. सेम हम माइनस 3y स्क्वायर का फाइंड करेंगे. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. Constant term. A term is an algebraic expressions having no literal factor is called a constant term. जिसमें कोई फैक्टर नहीं होते और साथ में उनको हम बोलते हैं constant terms. So see the example 8x plus 4xy minus 3. So इसमें जो हमारी constant term है वो -3 है, because इसमें कोई भी variable हमारा literal factor हमारा कोई भी नहीं है. Okay. Now comes next, coefficient. So in an algebraic term, the numerical factor of the term is a numerical coefficient or simply the coefficient of the term. Okay, now in a more general way, any factor of the term is the coefficient of the product of other factor of that terms. See the example, in 5xy, the numerical coefficient of 5xy is 5, the coefficient of x is 5y and the coefficient of y is 5x. जैसे यहाँ पर बेटा 5x है, सो हम फाइंड करेंगे 5 का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? xy. इफ वी फाइंड x का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, सो 5y जिससे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसकी, उसको स्प्रेड उसको हम अलग करेंगे एंड अदर जो पार्ट होगा वो हमारा कोफिशिएंट का कोफिशिएंट होगा. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. सो like terms are the term that contain same literal factor. They may have different numerical coefficient but they must contain same literal factors. See for the example, 5a square and 3a square are like terms because a की पावर जो है वो सेम है इनमें. Okay, now see cool tip on your right side. The order in which the variables are multiplied in the like terms is immaterial. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर एंड क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर आर लाइक टर्म्स.
इनको हम इनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दे तो इसकी जो वैल्यू है उसमें कोई हमारा फर्क नहीं होगा, हमारी सेम रहेंगी, मीन्स दीज आर लाइक टर्म्स। नाउ अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं बेटा? The contain different Literate factors. See the example 3xy and 5ab are unlike terms. यहाँ पर 3 के साथ xy है and here 5 के साथ ab है. And here minus 5ab plus 3a square b square. यहाँ पर बेटा a की पावर 1 है and b की पावर 1 है and here a and b की पावर 2 है. Okay. So these are unlike terms. Now comes next. Types of algebraic expressions. So on the basis of term the expressions are classified as follows. Firstly monomial. So an algebraic expressions contains one term is called a monomial. Example आप देखेंगे 3xy minus p q 5t 6p, ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं मोनोमियल्स के. नाउ नेक्स्ट बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स. सो बाइनोमियल्स में क्या होते हैं बेटा? हमारी टू अनलाइक टर्म्स होती हैं, इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स. सी द एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. सो बोथ आर, यहाँ पर हमारी टू टर्म्स हैं, वन इज x स्क्वायर एंड अदर इज 3y स्क्वायर. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल. नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रिनोमियल्स. सो इसमें जो हमारी अनलाइक टर्म्स होती हैं वो थ्री अनलाइक टर्म्स होती हैं. सी द एग्जाम्पल एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 3xy. सो इन दिस इक्वेशन थ्री टर्म्स हमारी अनलाइक टर्म्स हैं. वन इज एक्स स्क्र, सेकेंड इज माइनस वाई स्क्र एंड थर्ड इज 3xy. सो यहाँ पर हमारी थ्री टर्म्स हैं, सो इसको हम बोलेंगे ट्रिनोमियल्स. नाउ नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स. The general name of the algebraic expressions contains one or more terms is called a polynomials. Thus monomials, binomials and trinomials और all ये सारी क्या हैं? इन सबको हम polynomials बोलेंगे. Okay. Now comes next degree of an expressions. So the degree of polynomial is the greatest power of the variable present in the experience. For the example, the degree of the polynomial 3x square plus x plus 5 is 2. बिकॉज यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट पावर है बेटा इन दिस इक्वेशन x रेज टू पावर 2 है. सो इट मीन्स 2 हमारा डिग्री है ऑफ द दिस पॉलिनोमियल. ओके. नाउ कम्स नेक्स्ट. Start our exercise 6.a. A part, select the correct answer. First question, an algebraic expressions contains three terms is called. So जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल्स. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सी क्वेश्चन सेकंड. टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस 4x स्क्वायर माइनस 3xy आर. सो इसमें आपकी कितनी टर्म्स हैं? सो यहाँ पर हमारी टू टर्म्स हैं. ए पार्ट इज करेक्ट 4x स्क्वायर एंड माइनस 3xy. नाउ क्वेश्चन 3. The factor of the terms minus 5xyz are. So इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं. कौन कौन से हैं? माइनस 5x y एंड z, जिनकी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं. These are factors. Okay, A option is correct. Now question number 4. The coefficient of x is the expression 1 plus x plus xz is. So answer is C, 1 plus z. Okay. Now comes fifth. Which of the following is the pair ऑफ अनलाइक टर्म्स. सो आपको फाइंड करना है कौन सा पेयर है अनलाइक टर्म्स का. सो यहाँ पर आप फर्स्ट देखेंगे एक्स वाई स्क्वेयर एंड माइनस 13 वाई स्क्वेयर एक्स. सो बोथ आर सेम लाइक टर्म्स है ये हमारी, बिकॉज यहाँ पर एक्स वाई की पावर 2 है एंड हेयर ऑल्सो वाई रेज टू पावर 2 एंड एक्स रेज टू पावर 1 है बोथ साइड. सो बोथ आर अनलाइक टर्म्स. दीज आर अनलाइक टर्म्स. नाउ डी पार्ट आप देखेंगे माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर. सो हेयर 16 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है हमारी, सेम है, लाइक टर्म्स है. नाउ सी पार्ट आप देखेंगे माइनस 3y एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 3xy स्क्वेयर. सो इन दिस टर्म्स यहाँ पर आप देखेंगे y रेज टू पावर 1 है एंड हेयर y रेज टू पावर 2 है एंड हेयर x रेज टू पावर 2 एंड हेयर x रेज टू पावर 1. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ unlike terms. So C option is correct. Now comes B part. Solve the following. First question. Write the
algebraic expressions in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. So आपको इनका यूज करते हुए algebraic expressions लिखने हैं. A part is the number m multiplied by the sum of a and b. So इसके लिए हम कैसे लिखेंगे बेटा? See this. हमें m को मल्टीप्लाई करना है a एंड b के सम से. सो m मल्टीप्लाई a प्लस b. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m ब्रैकेट a प्लस b. ओके, नाउ b पार्ट, सम ऑफ द नंबर x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3. सो फर्स्टली हम सम करेंगे x एंड y का, x प्लस y एंड 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 3 माइनस x प्लस y इज आवर आंसर. नाउ सी 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ m एंड n. सो m एंड n के प्रोडक्ट को ट्वाइस करेंगे एंड -6 करेंगे. सो 2mn -6 इज आवर आंसर. नाउ d पार्ट, 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड y एडेड टू 5. सो x एंड y के प्रोडक्ट का 1/3 देन +5 करेंगे. सो xy अपॉन 3 +5 इज आवर आंसर. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व e एंड f पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Represent the term and factors of the following expressions by tree diagram. So यहाँ पर आपको tree diagram के through expressions factors find करने हैं, terms and factors. So A part is seen in your book, 2x y square plus x square y. Okay, A part हमारा ये है. So यहाँ पर आप देखेंगे हमारे two terms हैं, 2x y square and second is x square y. These are terms. Okay. सो अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स है 2x एंड y रेज टू पावर 2 है. सो इट मीन्स y 2 टाइम्स हम लिखेंगे 2x y y एंड हेयर x बिकॉज x रेज टू पावर 2 है, x 2 टाइम्स लिखेंगे एंड y. सो दीज आर फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सी इन योर बुक, आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. सो ए पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड. सो यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशंस है. नाउ टर्म्स फाइंड करनी है. सो यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एंड वाई जेड. ओके, नाउ फैक्टर्स इनके हो गए, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स एक्स एंड वाई जेड को हम लिखेंगे वाई एंड जेड. ओके, सो दीज आर फैक्टर्स. नाउ सी बी पार्ट, 2y स्क्वायर एक्स प्लस 7z. सो यहाँ पर भी हमारे 2 फैक्टर्स हैं, 2y स्क्वायर एक्स एंड जेड 7z. नाउ इनके फैक्टर्स हैं बेटा 2y स्क्वायर मीन्स y को 2 टाइम्स लिखेंगे एंड देन x एंड 7z में हमारे फैक्टर्स है 7 एंड z. सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सी इन योर बुक, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग. सो ए पार्ट इज 12x क्यूब y प्लस 8. सो यहाँ पर आपको टर्म्स बनानी है. आप टेबल फॉर्म में इसको कर सकते हैं लाइक दिस. टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़कर आपकी टर्म्स कौन सी है? 12x क्यूब y एंड यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है. सो हमारा कोफिशिएंट कौन सा हो गया? 12. ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 1.8a प्लस 0.9b. So here 2 terms, 1.8a and other is 0.9b. So यहाँ पर हमारे numerical coefficient हो गए बेटा 1.8 and here 0.9. Now similarly you have to solve other part of this question. Now comes question number 5. See in your book. Write the coefficient of a part is y square in 11 minus ay square. So यहाँ पर बेटा y square का coefficient क्या है? a. minus a. Okay, so minus a is our answer. Now see b part, x in y square minus 2xy. So हमारे पास इक्वेशन है, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो है y square minus 2yx. So यहाँ पर आपको x का फाइंड करना है. So x is in this term. So x का कोफिशिएंट होगा हमारा -2y. x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? -2y के साथ. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सी इन योर बुक, स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स एंड आर लाइक और अनलाइक टर्म्स. सो आपको लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फाइंड करनी है. सो ए पार्ट, सी इन योर बुक, 7x 5/2x. सो यहाँ पर हमारे x की पावर सेम है. सो दीज A part is like terms. Now see B.
-2xy एंड 3/2y। सो यहाँ पर बेटा हमारी y की टर्म सेम है बट x हमारा मिसिंग है, सो दिस इज अनलाइक टर्म। नाउ सी पार्ट 4x² एंड -3/7xy²। सो यहाँ पर भी हमारी अनलाइक टर्म्स है, so C is unlike term. Now similarly you find other part of this question. Now comes question number 7. See in your book. Identify the like terms in the following. So A part is -5y(x²), 9x² -7xy², 6x²y. So यहाँ पर हमारी like terms है बेटा in this question 5y(x² and 6y²y. Sorry 6x²y, बिकॉज यहाँ पर हमारी बोथ में x स्क्वेयर्स हैं एंड y हमारा रेज टू पावर 1 है बोथ में, सो दीज आर लाइक टर्म्स एंड अदर इज अनलाइक टर्म्स। नाउ सिमिलरली बी पार्ट सोल्व करेंगे। सी इन योर बुक 2a² b 3ab² -7ab -4ba²। सो इन दिस टर्म्स विच आर like terms, so 2a² b and -4ba², because in this terms both are a² and both are b, so these are like terms. Now similarly you have to solve other part of this question, find करेंगे like terms को। Now comes next question number 8. See in your book, which of the following algebraic expressions and polynomials. So a part is 3x - 4y + 6z. सो ये हमारा क्या है बेटा, पॉलिनोमियल्स हैं, बिकॉज यहाँ पर 3 से हमारे 3 टर्म्स हैं इनमें। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे a² -1/a⁴ + 3x + 2। सो यहाँ पर b एंड d हमारे नॉट पॉलिनोमियल्स हैं, बिकॉज वेरिएबल्स आर हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, बिकॉज इनमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं वे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन a, c एंड e आर पॉलिनोमियल्स एंड b एंड d जो हमारे हैं वो नॉट पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, नाउ f आप देखेंगे बेटा, f इज 5, सो 5 इज कांस्टेंट, सो 5 इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, बिकॉज इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है हमारा। Now see question number 9. Classify the following into monomial, binomials and trinomials. So आपको फाइंड करना है a part is x² + y²। सो ये हमारे क्या है, इसमें 2 टर्म्स हैं, सो 2 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। ओके, नाउ सी बी पार्ट abc। सो abc में हमारी 1 टर्म है, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। नाउ सी पार्ट -7x + 2। सो दीज इन दिस एक्सप्रेशन, सो 2 टर्म्स, सो बाइनोमियल बोलेंगे इसको। नाउ डी पार्ट आप देखेंगे xy + x²y + x²y²। सो हेयर आर 3 टर्म्स, सो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल। ओके, नाउ सिमिलरली यू फाइंड e एंड f पार्ट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10. सी इन योर बुक, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग algebraic expressions. सो इन दिस क्वेश्चन वी राइट द डिग्री। ओके, सो जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी हम वो लिखेंगे। नाउ सी ए पार्ट in your book x² y -3xy² + y⁴। सो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट जो डिग्री है बेटा, हाईएस्ट जो पावर है वो है 4, y⁴। ओके, लास्ट टर्म में हमारी 4 है, सो a का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4। नाउ सी बी पार्ट, सी इन योर बुक y�3, x⁴ 2, 7x⁴ y⁴ +7। सो यहाँ पर बेटा हमारी पावर्स इनको आप प्लस करेंगे, सो यहाँ पर हमारी 3 + 2 5। ओके, ए पार्ट में आप देखेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म है y³ एंड x³, सो आप इनको प्लस करेंगे तो हमारी 5 आ जाएगी। ओके, नाउ सेम सी पार्ट में हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, सो 4 इज आवर डिग्री। ओके, नाउ सिमिलरली यू फाइंड डी, ई एंड एफ पार्ट। Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.